God our Father, we thank you for helping us to meet together like this. One more Lord's Day, fully recognizing its importance, the day of resurrection, the day of victory, the day of blessed Savior. Unlike all the other people who died in the world, came out of the grave alive, victorious. And he said, once I was dead, but now I live forevermore. He said, I have received all the power in heaven and also on earth. We thank you, he is the King of kings and the Lord of lords. We have been greatly privileged to know this Lord Jesus. When you have called people from north and south, east and west, we thank you. We could also hear your calling. Thank you for helping us to respond to that invitation positively. That changed everything in our life. Today, we are the children of God. We are the family of God. We are the household of God. We are not strangers to God. We belong to Him, not for a few years, but for all eternity. One day this life on this earth will be over, but we will come to you and we will be in your presence. None of the problems which are haunting us today will not be there, and we will be in that eternal bliss. We will be able to see with our own eyes the Lord Jesus Christ, the one who loved us and gave himself for us. And we will be worshipping you there as we ought to worship. Today we confess, Lord, we are with all our limitations and especially sitting at different homes, there is every possibility for disturbances. But still, thank you for helping us to unite our hearts together and say a big thank you to you once again for all what you did for us. And praise your great name for all what you are. You are the creator, you are the controller, you are the sustainer. We thank you, you are concerned about each one of us. This life of ours is yours. You have purchased this life. You are concerned about us. There are problems in the world, difficulties in the world. This virus is spreading everywhere, but we thank you. You can take care of us as individuals and families. As an assembly, you can take care of us. Father, the rest of the time, as we turn to your word, help us to understand your word. Let it be an encouragement to each one of us. We may be able to hear the word of God and we may be blessed by it. Thank you for this Bible, the word of God. It's our language, in a language which we can understand. We have been indeed privileged to have a copy of this book, to read it, meditate, and hear the preaching and teaching of the word of God. Truths. Long back, we have studied this in Ahmedabad. That time, many of our children were very small. Now they have grown up. And others also may not be able to remember everything what we studied at that time. So, studying these messages, these truths, I am sure that it will help each one of us and it will be a blessing to us.
First, we are going to see about the two families in the world. 1 Corinthians chapter 15. पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय. Verse 45 to 49. First Corinthians 15, 45 to 49. ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था वैसे ही उस स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। Thank you. Either two families on the earth today: Adam's family and Jesus' family. Acts chapter 17, Paul said it, from one blood he has made the whole humanity. एक ही खून से, एक ही मनुष्य से सारे मनुष्य जाति को बनाया। मनुष्य होके जितने लोग दुनिया में हैं सब एक ही कुटुंब का है, एक आदमी का संतान है। हमारा कलर कुछ भी हो, हमारा भाषा कुछ भी हो, हमारा खाना पीना, हमारा कपड़ा पहनना, हमारा रीति रिवाज कुछ भी हो, एक बात सत्य है बाइबल में, ये सिखाते हैं हम सब एक ही कुटुंब का है, एक मनुष्य का संतान। ले लोगों के रहने का एक बात, आज जितना झगड़े हो रहा है, कितना भाव दिखाता है और कितना सीमाएं रखता है, इसका कारण है कुछ लोग सोचते हैं हम अलग है, हम दूसरे लोगों के जैसा नहीं है। इधर केरला में एक रिवाज है, फैमिली गेट टुगेदर। मैं भी एक बार उसमें गया, सब लोग, ये क्रिश्चियन का काम है, हर एक फैमिली का उनका गेट टुगेदर इकट्ठा होना है। हर एक फैमिली ढूंढ के इतना पीछे जाएंगे और आखिरी में उनका इतिहास में लिख जाएगा, सेंट थॉमस केरला में आया और उस समय 5 परिवार, ब्राह्मण परिवार अलग हो गया, हम उनमें से एक परिवार का। सेंट थॉमस इंडिया में आया, केरला में आया, अलग बात है। जो आया है वो यीशु का 12 शिष्यों में से एक ही था, वो किसी को पक्का बोल नहीं सकता है, क्योंकि बाइबल में इसके लिए कुछ प्रूफ नहीं है और कुछ हिस्ट्री ऐसा नहीं है, नहीं मिला है कुछ भी हो। इसलिए लोग पीछे मुड़ के देखना चाहते हैं। ओके, अच्छा है, हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो सेंट थॉमस का टाइम में नहीं रुकने का है, और कहाँ जाने का है, सीधा जाना है एदन बगीचा में। हमारा आदि माता पिता कौन था, ये बाइबल से
हमको मालूम पड़ेगा उनका नाम है आदम। चलिए, जन्म से हम सब आदम का परिवार का है। इधर यीशु मसीह का कई नाम दिया है। 45 में बोला है लास्ट आदम, आखिरी आदम। और 47 में लिखा है द सेकंड मैन, दूसरा मनुष्य। और 48 में लिखा है द हेवनली मैन, स्वर्गीय मनुष्य। चलिए, दूसरा परिवार है यीशु मसीह का परिवार। हम सब जानते हैं हमारे इंडिया का कस्टम के अनुसार जब एक लड़की का शादी हो जाता है, वो लड़की अपने घर छोड़ के पति के घर में चले जाते हैं। और सोच लो 22-25 साल तक जो घर में बड़ी हो गई और उस घर छोड़ के अपने पति के घर में चले जाते हैं हमेशा के लिए, बाकी पूरा जीवन उधर जीने के लिए। इसी प्रकार हम जन्म से आदम का परिवार में आया, और जो दिन हम यीशु मसीह को हमारा स्वर्गीय वरराजा के रूप में, when we accepted Jesus Christ as our heavenly bridegroom, we became part of his family. We became part of Jesus' family. Just now, Brother Shaji read this verse from Ephesians chapter 2. Verse 19. Chapter 2, 19. Now therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं थे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के होगे। ये हर एक विश्वासी समझने का बात है। We belong to the family of Jesus Christ now. So there are two families in the world today. And the second family, they are the heavenly citizens. They belong to the family of Jesus Christ. Or they will be going from this world very soon. So that is the second family. अभी आपको मालूम है, जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते थे, अभी नहीं जाता है इसलिए मैं बोला जाते थे, और एक ही बस में आके एक प्रत्येक जगह में सब बच्चे उतर जाते हैं, एक सोसाइटी का बच्चे। हमको मालूम है एक एक बच्चा अपने अपने घर में चले जाएंगे। हमारे बच्चे हमारे घर में वापस आएगा, पड़ोसी के घर में नहीं जाएगा, दूसरे घर में नहीं जाएगा। चाहे तो घर बहुत बड़ा होगा, हमारा घर बहुत छोटा होगा, फिर भी हमारे बच्चे हमारे घर में आएंगे। एक दिन इधर का हमारा काम सब बंद हो जाएंगे। ईश्वर उनके लिए अलग किए हुए लोग, यीशु का लोग, जीसस जनरेशन, द फैमिली विच बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट, उन लोगों को इधर से उनके पास लेके जाने वाला। चलिए, पहला सत्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस दुनिया में दो परिवारों है। जन्म से हम आदम के परिवार में आया। जब हमारा नया जन्म हुआ,
जब हम यीशु मसीह को हमारा प्रभु और तारनहार तरीके स्वीकार किया, हम यीशु का परिवार में आया। यीशु का परिवार वाले सब जितने हैं उतने सब लोग इधर से एक दिन चले जाने वाले हैं, अपने स्वदेश में चले जाने वाले हैं। हम स्वर्ग का नागरिक है, हम ईश्वर का घराने का है। हमें इधर स्वर्ग के लिए तैयार किया। ये हमको बहुत तसल्ली देने वाला बात है। हम ईश्वर का लोग है, यीशु मसीह का परिवार का है। दूसरा सत्य इधर है, दो जन्म के बारे में। ये सब आप जानते हैं अच्छी तरह, फिर भी इसके बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं। पहले हमने देखा दो परिवार है, दूसरा है दो जन्म। यूहन्ना 3 अध्याय है, उसका 3 और 5 में यीशु मसीह निकोदिमोस के साथ बात कर रहा था। उस समय यीशु निकोदिमोस को बोला, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। 5वां कलम भी। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। नया जन्म, इसका अर्थ क्या है? जब हमको इस दुनिया में थोड़ा समय के लिए ईश्वर रखना चाहता था, लाना चाहता था, ईश्वर हमको जन्म दिया। जन्म के द्वारा ही हम पृथ्वी में प्रवेश किया। इसको हम बोलते हैं हमारा बर्थडे, जन्म दिवस। यीशु इधर निकोदिमस के साथ बात करते समय में उनको बोला, एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन, he cannot see the kingdom of God. हम हमको खुद born again नहीं बना सकते। फिर कैसा हो सकता है? जब हम हमारा जीवन प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, ईश्वर हमको एक नया जीवन, एक नया शुरुआत हमारे जीवन में आरंभ करते हैं। वो पुराना जीवन के साथ जोड़ के हमारा जीवन को आगे बढ़ाते, ऐसा नहीं है। एकदम नया है, एक नया शुरुआत है। ये हमको समझने का है। इसको समझने के लिए मैं दो दृष्टांत देना चाहता हूं। एक आपको बहुत परिचय है, नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, जो नवंबर 8 तारीख को आज से 3 साल पहले जो हुआ है, वो बहुत लोगों के जीवन में बहुत अशुभताएं लाया है। फिर एक बात मुझको उन दिनों में सीखने के लिए मिला है। हम भी आखिरी में ढूंढा, ये जो पुराना नोट्स जितना हमारे घर में था, थोड़ा मिला थोड़ा नहीं मिला, आज भी थोड़ा बच के रखा है याद करने के लिए। और जितने मिला है उसको लेके बैंक में गया, और लोग उस समय तक बहुत भीड़ बनाते थे बैंक में सब। वो थोड़ा कम होने के बाद एक दिन आराम से गया और उधर एक फॉर्म भर दिया
जितना पुराना नोट था उसका नंबर सब लिख लिया, एक काउंटर में दिया। अरे 15-20 मिनट के बाद दूसरा काउंटर से नाम बुलाया, तो गया तो उसी रकम के लिए नया नया नोट्स निकाल के दिया। उधर से एक बात मैं सीख लिया, एक मनुष्य भी ईश्वर के सामने ऐसा ही करते हैं। हमारा पुराना जीवन, उसका हालत कुछ भी हो, कितना पाप से भरा हुआ हो, कितना भी बिगड़ा हो, कितना भी कटा हो, हम ईश्वर के सामने सरेंडर कर दिया। ईश्वर क्या किया? उसके बदले में हमको एक नया जीवन दिया। इस ईश्वर करते हैं, हम इतना ही कर सकते थे, हमारा जीवन को प्रभु के हाथों में दे सकते हैं। ईश्वर हमारा जीवन को साफ किया, शुद्ध किया, साथ साथ उसको नया बनाया, नया बना के हमको एक नया जीवन दिया। दूसरा दृष्टांत है ये बटरफ्लाई का, तितली का। मैं खुद देखे कई बार अचंभित हो गया। जो प्राणी समाधि दशा में जाते समय में वो कैसा है, थोड़े दिनों के बाद उसका कोकून उसको तोड़ के जब बाहर आते समय में वो प्राणी में जो रूपांतर हुआ वो कितना अद्भुत है, बहुत बड़ा चमत्कार है। और जाते समय में इट इज रेंगने वाला, क्रॉलिंग, उस समय तक it was crawling on the trees or plants and it was eating the bitter leaves, कड़वा पत्ता खाता था। और it was not that attractive, it was just like a worm. So it is that caterpillar ended into that samadhi, ended into that rest, ended into that cocoon. After specific time, one day that cocoon got broke and it came out of that cocoon. अभी कैसा वापस बाहर आया, एकदम नया प्राणी होके। Now it can fly in the air and it is not going to crawl, it is going to fly. It is not going to eat those bitter leaves, it is going to take the nectar from the flowers. It was not very attractive earlier. Now it looks so beautiful, so attractive. So the change which is happened, this is new life. So there Nicodemus asked him questions. There the Lord Jesus told him one thing, that which is born of the flesh is flesh, that which is born of the spirit is spirit. जो शरीर से जन्मा है वो शरीर, आत्मा से जो जन्मा है आत्मा। इसको born again, second birth by the Holy Spirit of God, spiritual birth, ऐसा सब बोल सकते हैं। So there are two groups of people in the world again. One is people who are born in Adam's family, and there is another group
They were born in the family of Jesus Christ. So today we belong to Jesus family. We are born again people of God. हम नया जन्म पाए हैं और ये नया जन्म का जीवन हम जीने का है। ये रूपांतर जो हुआ है वो हमको दुनिया में दिखाना पड़ेगा। 2 Corinthians 5:17 हम सब अच्छी तरह जानते हैं। उधर लिखा है, यदि एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में है तो नया सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई होगी। ये है आत्मिक परिवर्तन। ईश्वर इस प्रकार का परिवर्तन जीवन में लाना चाहते हैं। पुराना बातें सब चला गया, देखो सब नया हो गया। चलिए, एक व्यक्ति विश्वास में आते समय में बहुत कुछ छोड़ के आते हैं और बाद में बहुत कुछ नया बातें पाते हैं, लेते हैं। इसलिए एक एक विश्वासी समझने का है, मैं एक नया प्राणी हूं, नया जीवन हूं, नया सृष्टि हूं। मेरे जीवन में सब कुछ नया हो गया। क्या क्या नया हो गया समझना है। बाइबल के लिए एक नया बुक। अभी तक ये पुस्तक जब माँ बाप का फोर्स के कारण, उनका दबाव के कारण हम पढ़ता था और नहीं पढ़ता था। पढ़ता है तो भी कुछ समझता भी नहीं था, हमको इसके लिए कुछ ज्यादा रुचि नहीं था। अभी ये पुस्तक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। It became sweeter than honey for us, and there is a new love and new likeness for the word of God. बाइबल के लिए एक नया प्रेम, इसके बिना जी नहीं सकता। मैं मेरा साक्षी देते समय में ऐसा बोलता हूं, मेरा अनुभव, जो दिन मैं प्रभु को स्वीकार किया, मैं अकेला था और आगे क्या करना उसके बारे में बोलने के लिए मेरे पास कोई नहीं था। पर मालूम नहीं है, मेरे अंदर बाइबल के लिए इतना बड़ा भूख प्रभु ने डाल दिया। 20 साल तक ये पुस्तक मेरे घर में था, मैं वो खोल के पढ़ना नहीं चाहता, मेरे हाथ में लेना नहीं चाहता था। और जो दिन प्रभु को स्वीकार किया, पहला परिवर्तन है था, मेरे अंदर बाइबल के लिए बहुत बड़ा प्यास, बहुत बड़ा भूख, बहुत बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया। ये पहला एक परिवर्तन। दूसरा है ईश्वर के साथ समय बिताने के लिए, उनके संगति में रहने के लिए, ईश्वर के साथ बात करने के लिए एक नया अभिलाषा हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। तीसरा हम बोल सकते हैं, प्रभु के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक प्रेम। उससे पहले प्रभु के लोगों को गाली देता था, उनके बारे में बुरा बातें बोलता था। अभी उनके पीछे जा रहा है। ऐसा पौलुस का जीवन का परिवर्तन हुआ। यरूशलेम में मंडली वाले उनको स्वीकार करने के लिए उनको तकलीफ था। जब खुद उनके पास गया
वो सोचा अभी तक वो बाहर रह के हमको सता रहा था, अभी अंदर आके हमको सत्यानाश करने के लिए अंदर आ रहा है। ऐसा नहीं था, हमको मालूम है उनके अंदर प्रभु ने ऐसा एक बहुत बड़ा इच्छा, there was a strong desire to have a relationship and fellowship with the people of God. इसलिए दो तीन परिवर्तन एक एक विश्वासी के जीवन में देखने का है। लव फॉर द लॉर्ड, स्पेंडिंग टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, सेकंडली लव फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, thirdly love for the people of God. These are some indications showing that a person is really born again. So this is very important. So that is the second truth we see in the word of God. Thirdly, there are we read about two deaths in the Bible. Revelation chapter 20 verse 6. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such the second death has no power. धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरा मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है। दूसरा मृत्यु, ये दूसरा मृत्यु है हमेशा के लिए मनुष्य प्रभु से अलग होकर अनंत काल का नाश में चले जाते हैं। बाइबल में मरण का अर्थ है सेपरेशन, अलग होना। मरण के समय में क्या होता है? आत्मा और शरीर अलग हो जाते हैं, इसको हम मरण कहते हैं। उत्पत्ति दूसरा और तीसरा अध्याय में हम मरण के बारे में उधर पढ़ते हैं पहली बार। ईश्वर दूसरा अध्याय में मनुष्य को बोला, ये फल मत खाना, यदि तुम ये फल खाओगे तुम मर जाओगे, मर जाएगा। If you eat this fruit, you will die. You will surely die. तीसरा अध्याय में शैतान आके उनको क्या बोला? You eat it and you will not die. You will surely not die. Who is right? Who is wrong? God said you will spiritually die in the very moment. जो क्षण फल खाओगे, तुम खाओगे, उसी क्षण तुम मरोगे। और शैतान जो बोला था शारीरिक मरण के बारे में, शारीरिक स्थिति में उधर मरा नहीं है, तुरंत नहीं मरा, आत्मिक मरण हुआ। आत्मिक मरण का अर्थ ये है ईश्वर से अलग हो गया। उस दिन तक ईश्वर के साथ जैसा जोड़ा गया था, ईश्वर के साथ कैसा संगति रखा था, वो अलग हो गया। चलिए, पहला मरण में दो बातें हैं, आत्मिक मरण भी है, शारीरिक मरण भी। और आदम का शारीरिक मरण उस दिन शुरू हो गया, थोड़े सालों के अंदर ही, बाद में ही मर गया। बट उसका शारीरिक मरण भी साथ साथ था। आत्मिक मरण तुरंत हुआ, शारीरिक मरण थोड़े समय के बाद हुआ। ये पहला मरण। दूसरा मरण है हमेशा के लिए ईश्वर से अलग होके अनंत काल का आग में चले जाना। There is no possibility of any return.
पहला मरण से मनुष्य वापस आ सकता है यीशु मसीह के कारण, वापस आ सकता है। दूसरा मरण से उनको कभी भी वापस नहीं आ सकता। इसको बोलते हैं बाइबल में दूसरा मरण। इसलिए दो मरण के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। समझना है, मरण का अर्थ है सेपरेशन। फोर्थ, इधर हम उसी कलम में देखा है टू रिसरेक्शन। धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। अभी यूहन्ना का सुवार्ता 5वां अध्याय है, उसका 28-29, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 5 28-29। Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear his voice. इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। And shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. जिन्होंने भलाई की है वे जीवन की पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। 29 में जिन्होंने भलाई की है, क्या भलाई किया? एक बच्चा अपने के लिए क्या भलाई कर सकता है? अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह बढ़ना है, यह है एक बच्चा अपने लिए कर सकता है। एक व्यक्ति अपना परिवार के लिए क्या भलाई कर सकता है? उनका परिवार को जरूरतें सब पूरा करके देना है, अच्छी तरह बच्चों को बढ़ाना है, ये भलाई। एक व्यक्ति इस जीवन में कर सकते हुए सबसे बड़ा भलाई यह है अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप देना। यह है एक व्यक्ति अपने लिए कर सकते हुए सबसे बड़ा भलाई। इसलिए प्रभु यीशु बोला है जिन्होंने भलाई की है वे जीवन की पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड की पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इधर दो पुनरुत्थान है, ये दोनों के बीच में कितना सालों का अंतर है ये साथ में बताया है। फिर इसके अंदर कम से कम 3000 साल का अंदर हो चुका है, और यदि प्रभु यीशु मसीह का आगमन का देरी है तो सॉरी 1000 साल का अंदर है। याद देना, मैं इधर एक बहुत बड़ा गलती बोला है, करेक्शन देना चाहता हूं। 1000 साल का अंदर है। पहला पुनरुत्थान विश्वासियों का पुनरुत्थान है, जो भलाई की है उनका पुनरुत्थान, और दूसरा पुनरुत्थान है अविश्वासियों का पुनरुत्थान। ये दोनों के बीच में 1000 साल का अंदर है। यीशु मसीह इस दुनिया में आके राज्य करने के बाद, और यदि थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलेगा तो 1007 साल का अंदर रहेगा, ये फिक्स्ड है। ओके, इसलिए दोनों साथ में नहीं होने वाला है, यह समझने का है। और पहला पुनरुत्थान केवल विश्वासियों के लिए, और दूसरा पुनरुत्थान अविश्वासियों के लिए। और प्रकटीकरण से एक और कलम पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। Revelation chapter 20, we read about the white throne judgment there.
11वां कलम, verse 11. and 12 together we will read. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. There was found no place for them. फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली. 12. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. Okay, उतना चलेगा. फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई और पुस्तक में लिखा हुआ बातों के अनुसार सबका न्याय हुआ और उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया. इधर से हमको क्या समझ में आता है? कितना भी साल पहले मर गया हो, सारे दुष्ट लोगों को और बड़े छोटे सबको प्रभु उनके सामने खड़ा कर देगा. ये मलयालम ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है. आबाल वृत्त, बाल और वृत्त सबको वापस जिंदा करके उनका शरीर अलग होगा. अनंत काल का आग में जाके अनंत काल जीने के लिए एक शरीर भी उनको दिया जाएगा और उसको उधर से जाना पड़ेगा. तो फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 5 से लेके हम पढ़ेंगे तो उधर आखिरी में उधर ऐसा लिखा है, हर एक घुटना उसके सामने घुटना टेकेंगे. वर्स 8 होगा, 8 और 9. Philippians chapter 2 verse, okay, that at the name of Jesus, verse 10, every knee should bow, of things in heaven and things in earth, things under there. जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके. verse 11. And every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. परमेश्वर पिता का महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है. इधर 2 बातें देख लो. हर एक आदमी का घुटना टेकना पड़ेगा. पहला बात, हर एक आदमी को अपना जीभ से एक परिवार बोलेगा तो नहीं चलेगा. पति के लिए पत्नी नहीं बोल सकती है, बोल सकता है. पति के लिए पति बोलना पड़ा, पत्नी के लिए पत्नी बोलना पड़ेगी. बच्चों के लिए बच्चा बोलने, एक बच्चा बोलना पड़ेगा. हर एक जीव उधर कबूल करना पड़ेगा यीशु मसीह प्रभु है और घुटना टेके कबूल करने के बाद ईश्वर बोलेंगे खड़े हो जाओ. तुम्हारा पूरा जिंदगी दुनिया में शैतान के लिए उसके पीछे जिया रहा, इसलिए उनके साथ शैतान और उसका स्वर्गदूतों के लिए, शैतान और उनका दूतों के लिए बनाया हुआ अनंत काल का आग में चले जाओ. इधर ये 2 पुनरुत्थान के बारे में हम पढ़ते हैं. सबको यीशु पुनरुत्थान करके विश्वासियों को एक नया शरीर स्वर्ग में जीने के लिए, जो शरीर
का जरूरत है, उस शरीर हमको उधर प्रदान करके हमें स्वर्ग में लेके जाएगा, हमारा रूपांतर हो जाए। और अविश्वासियों को भी जिंदा करके, पुनरुत्थान करके, नरक में जीने के लिए जो शरीर का जरूरत है, उस शरीर के साथ उनको नरक में भेजने वाला। चलिए 2 पुनरुत्थान के बारे में हम उधर पढ़ते हैं। 1-2 कलम में रेफरेंस के लिए खाली बोल के देता हूं। दानियल का पुस्तक 12 अध्याय का 2 में हम ये सच्चाई और एक बार पढ़ते हैं। 2 प्रकार का लोग पुनरुत्थान पाएंगे, उसके बारे में उधर लिखा है। ठीक है, अभी हम स्वर्ग में जाने वाले लोगों में 2 झुंड होगा, 2 groups of believers going from here to heaven. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. 1 Thessalonians 4 verse 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरगी फूकी जाएंगी, जो मसीह में मरे हैं वे पहली जी उठेंगे। 17. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 16 कलम में वापस आएंगे, हम इधर देखते हैं। इधर है ना, बिल्ली ग्राहम के घर में कैसा बाइबल पढ़ते हैं वैसा पढ़ना पड़ेगा। उधर है ना, ये पढ़ते समय में कुछ बातें क्लियर करना है तो उधर ही क्लियर करते थे। तो पहला बात है डेड इन क्राइस्ट, क्रिस्त में मरे हुए, क्रिस्त में जो मरा है, मसीह में मरा है, वो जी उठेंगे। मसीह में मरने का अर्थ क्या है? और मसीह में मरने का अर्थ है एक विश्वासी जब दुनिया छोड़ के चले जाते हैं वो मसीह में मरते हैं। ये सब हमको परिचय बात है। लोग पानी में मरते हैं और अलग अलग जगह में मरते हैं। यदि केरला में मरना है तो केरला में रहना पड़ेगा, अमेरिका में मरना है तो अमेरिका में जाना पड़ेगा, समुद्र में मरना है तो समुद्र में जाना पड़ेगा, पानी में मरना है तो पानी में जाना पड़ेगा। उसी प्रकार हम जो प्रभु यीशु में आया उस दिन से हम प्रभु में जीवित है। और जब ऐसे लोग जब प्रभु में मरते हैं, लोग मरते हैं, उन लोग प्रभु में मरते हैं। ये सारा क्रिश्चियन, नामधारी क्रिश्चियन के लिए नहीं है। जो प्रभु यीशु में आके नया जन्म पाया है, प्रभु के लिए बाकी जीवन जिया है, उन लोगों के लिए है। उन लोग मरते समय में। और इसी कलम में और 3 शब्दों के बारे में हम पढ़ते हैं। The Lord himself descend from heaven with a shout, then the voice of the archangel, then the trump of God. 3 sounds. First one, the Lord will descend from heaven with a shout. इसको समझने के लिए लाजर के कब्र के पास यीशु जाके उधर प्रभु ऐसा
आवाज करके बोला है, ए लाजरस कम फोर्थ। परिणाम क्या निकला? लाजरस मरे हुओं से जिंदा होके बाहर आया। यीशु मसीह सारे विश्वासियों का खबरों को देखे स्वर्ग से ऐसा बोलेंगे, कम फोर्थ, बाहर आओ। सब विश्वासी लोग बाहर आएंगे। और दूसरा शब्द इधर है, वॉइस ऑफ द आर्कएंजल। ये क्या के लिए है? हमको सुरक्षा देने के लिए, हमें सुरक्षित स्वर्ग में पहुंचाने के लिए ये आर्कएंजल उनका सैन्यों को ऑर्डर देगा, उन लोग हमको सुरक्षित उधर पहुंचाएंगे। हम लाजरस के बारे में पढ़ते हैं। लाजरस जब मर गया, लाजरस और रिच मैन एंड लाजरस जब मर गया, स्वर्गदूतों आके उनको अब्राहम का गोदी में लेके गए। तीसरा शब्द है द ट्रम्प ऑफ गॉड। पुराना नियम में हम ट्रम्बट के बारे में पढ़ते हैं। ट्रम्बट अलग अलग रीति में आवाज करते थे, लोगों को इकट्ठा करना है, एक जगह छोड़ के दूसरा जगह में जाने के लिए उनको तैयार करना है। ये इसके लिए सब अलग अलग आवाज होते हैं। एक जगह से उनका तंबू सब निकाल के दूसरा जगह में जाने के लिए ये ट्रम्बट का आवाज होता था। उसे उनको मालूम है, जब ट्रम्बट का आवाज आएगा उसका मार्चिंग ऑर्डर है। इसलिए इधर विश्वासी लोग पुनरुत्थान पाया प्रभु का शाउट के कारण, और स्वर्गदूतों उनको पूरा सुरक्षा देने के लिए खड़ा हो गया। और जिंदे विश्वासी लोग और मरे विश्वासी लोग सबके लिए ट्रम्बट ऑफ गॉड उसका आवाज हो जाएंगे। हम क्षण के अंदर इधर से प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए इधर हम दो ग्रुप बिलीवर्स के बारे में 17 कलम में आएगा तो जिंदा विश्वासियों के बारे में हम पढ़ते हैं। हम जो जीवित और बचे रहेंगे, अब का अर्थ क्या है मुझको मालूम है। एक बार मैं एक ज्यादा नामधारी क्रिश्चियन है उनके बीच में एक प्रेयर में बैठा था। उधर उनका ही एक आदमी खड़े होके हम कौन है इसके बारे में, हम मतलब हम इधर बैठे हैं, हम सब, उनके लिए हम अलग है, इधर का हम कौन है। पौलुस उनको दूसरे विश्वासियों के साथ जोड़ के देता है। हम का अर्थ है विश्वासी। यदि मैं एक जगह में खड़े होके ऐसा बोलते हैं हम सब, मतलब जितने विश्वासी लोग उधर है, ये है उसका अर्थ। इसलिए इधर दो झुंड है। एक है प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु के लिए जिया, बाद में प्रभु में मर गया। दूसरा झुंड है प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु के लिए इधर जीवित है। उनका जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह वापस आके मरण देखने के बिना इस दुनिया से प्रभु के पास चले जाते। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय से इसके साथ जोड़ के एक दो कलम पढ़ना उचित है। 1 Corinthians chapter 15 verse 51 onwards. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. देखे, मैं तुमसे भेद की बात करता हूं कि हम तो नहीं सोए, हम सब तो
हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे. 52 also. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, the trumpet shall sound. That shall be raised incorruptible, we shall be changed. और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही भूकेंगे, और क्योंकि तुरही भूकी जाएंगी, अब मुद्दे अविनाशी दशा में उड़ाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे. ओके, उधर हम रुकेंगे. इधर एक बहुत आनंद का बात है. एक पीढ़ी का कुछ लोग मरण देखने के बिना इधर से चले जाएंगे. मरण देखने के बिना इधर से चले जाएंगे. यदि यीशु मसीह आज हो दुनिया आज हमें लेने के लिए वापस आया, हम उन लोगों में शामिल है. मरण देखने के बिना हमको प्रभु के पास पहुंच जा सकता है. यदि प्रभु का आगमन का देरी है तो हम दुनिया से मरण के द्वारा चले जाएंगे और दूसरे लोग इस झुंड में आ जाएगा. उनका जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह आके उनको मरण देखने के बिना इधर से प्रभु के पास जा सकते हैं. इधर एक शब्द आपने देखा होगा 51 में, आई टेल यू ए मिस्ट्री. एक भेद का बात मैं बताता हूं. मिस्ट्री का अर्थ बाइबल में है अभी तक प्रकट नहीं हुआ था. ये पौलुस को प्रभु ने नया प्रकट किया हुआ बात है. तब तक किसी को मालूम नहीं था. ये एक मिस्ट्री है. अभी तक पौलुस को ये बताने तक ये मिस्ट्री था. अभी मिस्ट्री नहीं है. यदि अभी हमको मालूम है. इसलिए इधर से दो झुंड स्वर्ग में जाने वाले हैं. पहला झुंड है प्रभु पर विश्वास किए हुए लोग, बाद में प्रभु में मरा है, उन लोगों का पुनरुत्थान होके उन लोग स्वर्ग में प्रभु के पास जाने वाला है. आज मैं इधर बंद करना चाहता हूं और प्रभु का इच्छा है तो आगे हम इस विषयों के बारे में पढ़ेंगे. वचन का दो सच्चाइयां कैसा साथ में जोड़ा हुआ है. इसलिए हिंदी में इंग्लिश में मैं एक शब्द यूज किया, ट्विन ट्रूथ्स, दो सत्यों का जोड़ी. इसमें बहुत तो फर्क होगा और दो सत्यों का जोड़ी है. इसलिए हम आगे पढ़ेंगे. प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करें. हम 5 बातें इधर से देखा है. पहला बात, हम यीशु मसीह का परिवार में है. हम स्वर्ग में जाने वाले हैं. यीशु का परिवार है. आदम का श्रापित परिवार से यीशु मसीह का आशीर्वादित परिवार में हम आ गए. हम धन्य है. दूसरा बात हम देखा है, हमारा नया जन्म हुआ. हम नए सृष्टि है. प्रभु ने हमें एक नया जीवन दिया. तीसरा बात हमने देखा है दो मरण के बारे में. जो मरण आदम दुनिया में लाया, आदम के द्वारा आया, और दूसरा मरण मनुष्य अपना जीवन काल में प्रभु को इनकार किया. प्रभु के साथ ना रहने के कारण उनको अनंत काल का नाश में, अनंत काल का आग में हमेशा के लिए ईश्वर से अलग होके रहना पड़ेगा. फोर्थ हम देखा है दो पुनरुत्थान के बारे में देखा है. विश्वासियों का पुनरुत्थान और अविश्वासियों का पुनरुत्थान. पांचवा बात था जब प्रभु यीशु मसीह वापस आए, इधर से दो ग्रुप ऑफ बिलीवर्स, दो झुंड का विश्वासी लोग इधर से प्रभु के पास जाएंगे. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं. हम बाकी लोगों के साथ मिलकर इस दुनिया में थोड़े साल रहने के बाद
नाश में चले जाने वाले लोग थे, और प्रभु हमें बचाया, उनका बनाया। यदि वर्तमान हमारा जीवन काल में यीशु मसीह वापस आया तो हम मरण देखने के बिना इधर से प्रभु के पास जाने वाला है। इस आत्मिक सच्चाइयों के लिए, आशीष का बातों के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया, अलग किया, उनका बनाया। उस प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करे। I'll request Brother John Joseph Das to please pray and close the meeting.